Radhe Radhe all of you. Here we are going to talk Act 1 Scene 1 of Julius Caesar. It is a tragedy of Julius Caesar, which is written by the famous person William Shakespeare. We know very well William Shakespeare. He has also written The Merchant of Venice and many others books. We are going to talk about the Caesar. In this, first we have to understand something. And what was that? First of all, Caesar Williams, this Act 1 Scene 1 shows the popularity of Caesar, how popular Caesar is, कितने प्रसिद्ध हैं सीज़र इस सीन में बताया गया है. और जेलसी ऑफ ट्रिब्यून्स, कितना लोग उनसे जलते थे. ट्रिब्यून्स मतलब विक्ट्री, जिसके ऊपर उन्होंने विक्ट्री पाया था. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जीत हासिल की थी पॉम्पेस सन के ऊपर. पॉम्पेस का जो सन था, पॉम्पे भी एक किंग था. पॉम्पेस सन दोनों जूलियस सीज़र और पॉम्पेस सन के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें सीज़र जीत गए थे. जो पॉम्पे के साइड थे, उनके जो चमचे वगैरह थे, उनको कहा गया है ट्रिब्यून्स. वो सीज़र से जो भी सीज़र का साथ देते थे उन्हें डांटते थे. और इस एक्ट 1 सीन 1 में उन्हीं के बारे में बात की गई है. एक्ट 1 सीन 1 में भीड़ इकट्ठा होना एक मेजर रोल प्ले किया है. पूरे सीन में भीड़ इकट्ठा हुई, ये सब बात किए जाएंगे. वो ट्रिब्यून्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे, वो 2 ट्रिब्यून्स थे, एक मार्युलस, एक फ्लेवियस. मार्युलस जो थे, मार्युलस और नॉट Flavius. Both are tribunes of Pompey. Okay, so here you can see Caesar. Okay, he got victory and he was Roman. Now the scene opens. Now here Act 1 Scene 1 starts. In Act 1 we will learn how the scene starts. In Act 1 Scene 1, it took place in a street of Rome where who enter? Flavius, Marullus and certain citizens. Many citizens of Rome entered. They are talking. Now what they are talking? As we know, all gathered to celebrate Caesar victory over the son of Pompey. Now Flavius here, who is one of the tribunes of Pompey, he entered in the scene and he started scolding the citizen of Rome. What Flavius is saying, let's talk. If you will remove this name, what will happen? You will not able to understand who is talking about. So it must learn who told these words. If you will understand one time the scene, Act 1 Scene 1, you will already know, you will learn easily. So here the scene starts. Hence home you idle creatures, get you home, means go back to your home. Who is saying these words? These words said by Flavius. He is saying go back to your room, a home, not room. Is this a holiday? वो बोलते क्या छुट्टी है? No you not. क्या तुम नहीं जानते क्या छुट्टी नहीं है? Being mechanical, you thought not work, means being mechanical, being workers. Who? Mechanical means workers. You are not allowed to walk here and there in the room. Upon a laboring day, upon a working day, without the sign of your profession, without the sign means without the tools, you are not allowed to walk here and there in the room. Now he is asking to the first citizen, what trade are you? इतना समझ में आया. ये फ्लेवियस आता है, वो क्या बोलता है कि तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? आज मतलब कि घर जाओ अपने, आज तो छुट्टी नहीं है. क्या तुम नहीं जानते क्या छुट्टी नहीं है? एक वर्कर्स होते हुए तुम लोग स्ट्रीट में ऐसे घूम रहे हो, रोम में ऐसे घूम रहे हो. अपॉन अ लेबरिंग डे, ऊपर से काम करने वाले दिन.
संडे तो नहीं है आज, आज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भी दिन होगा, उस पर डांट रहे हैं. और विदाउट द साइन ऑफ प्रोफेशन, चलो घूम भी रहो तो विदाउट योर टूल्स, हियर द साइन ऑफ प्रोफेशन मीन्स टूल. ओके, sign of the profession means tool. Without the sign of the tools, how you are walking in the street? Now he is asking to the first citizen, tell sir what trade are you? What trade are you? Now the first citizen will say what he is saying. He is saying, yes sir, a carpenter. He is saying he is a carpenter. He is giving a normal answer. If someone is asking what is your name, you are just saying my name is dash, whatever your name. Here you are using the direct word, but now he is not not playing with words. He are normal. He asks saying the answers. Now the second. So here Marulus said, where is thigh leather apron and thigh roll? मतलब कि where is your leather apron? Apron means क्या होता है? coat. Where is your coat which is made up of leather? एक कारपेंटर होने की वजह से they are not wearing the precious, we can say, shirts, pants, because when they will do work it will become fade, right? Like that same, they used to wear faded dress. And he is asking, where is leather apron and thigh roll? Leather apron means coat made up of leather, and thigh rolls means tools of your profession. Where is that? What those two with thigh best apparel on, and why you have wear such a best cloth on working day, especially being a carpenter? You sir, what trade are you? Now he's asking to the next citizen, what trade are you? Now let's see what second citizen is going to speak. He is saying, truly sir, first of all you must know how second citizen is talking. Second citizen is very smart. First point, he is very very smart. He is very very smart. Okay. Second, what is second? That he know how to play with words. He know how to play with words, and in the whole scene he is used to play with words. Third, he answer with respect. In every time he is saying, in respect sir, in respect sir. So he is answering the question with saying the word respect. Now let's continue. Now second citizen, when he asks, when Marulus asks to what trade are you, the second citizen is saying, truly sir, in respect a fine workman, but as I could say a cobbler. That he is saying, truly sir, in respect of fine workman, if I could say that I am a workman, I am a workman. I am, but as I could say a cobbler. So he is saying that I think I am a cobbler. Cobbler are of two words. Here the word is, as I already told you, that he is playing with words. Here the word cobbler is having two meaning. First, mender of shoes means what casually we know, cobbler. And second is bungler. Bungler means lazy person. Okay, lazy person. So here he used the word pun. Cobbler means pun. He is to use direct, not indirect word. Then Marulus is saying, but what trade are you? He is answering, he is not able to understand, because as you know, what the word cobbler has two meanings. First is bungler, that is lazy person. Then second is mender of bad soul, what we casually know. Then Marulus is saying, but what trade are you? Answer me directly. Don't play with words. Answer me directly. Then second citizen, again he is saying, a trade sir, that he is doing a trade. एक व्यापार करता है. I hope I may use with a safe conscience. He is saying that I should, if I could say that I should answer with safe conscience. Conscience समझते होंगे. Conscience समझते होंगे. टू होता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव.
जानते हैं ना, वो कहते हैं यू ब्लॉक मीन्स हार्टलेस पीपल, दे आर नॉट हैविंग एनी हार्ट इन देयर बॉडी। यू स्टोन मतलब पत्थर दिल। यू वोर्स देन सेंसलेस थिंग मतलब तुम लोग ऑब्जेक्टिव इनकेपेबल ऑफ फीलिंग, तुम लोग का ऐसा ऑब्जेक्टिव है मतलब कि इतना खुशी जो मना रहे हो उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसका कोई लॉजिक नहीं है। ओ यू हार्ड हार्ट मतलब पत्थर दिली। यू क्रूअल मैन ऑफ रोम बोलता है यू क्रूअल मीन्स सेल्फिश, नॉट शोइंग मर्सी, ठीक है, सेल्फिश एकदम। न्यू यू नॉट नोइंग पॉम्पे मतलब क्या तुम पॉम्पे को नहीं जानते हो, जिसके बेटे को सीजर ने हराया है, क्या तुम उसको नहीं जानते हो, उसके पापा को। मैनी अ टाइम एंड ऑफ्टन टू टावर एंड विंडो ये देखो, मैनी अ टाइम एंड ऑफ्टन हैव यू क्लाइम्ड अप टू वॉल्स एंड बैटलमेंट टू टावर एंड अ विंडो ये आर चिमनी टॉप्स मीन चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को हाथ में लेके वो क्या करते, जब पॉम्पे आता था स्ट्रीट ऑफ रोम में तो सिटीजन्स ऑफ रोम पॉम्पे को इतना मानते थे कि जब वो आता था उसके कुछ समय पहले ही मतलब बहुत कुछ समय पहले सब लोग गैदर होने लगते थे। गैदर इसलिए होते थे क्योंकि जो पॉम्पे था वो एक राजा महाराजा था, जब वो आता था तो रोम ऑफ सिटीजन्स बहुत ही एक्साइटेड थे उनको देखने के लिए। अब जब एक्साइटेड थे तो ढेर सारे सिटीजन होंगे रोम में, तो वो क्या करते थे, अरे उनको इतना जगह नहीं मिलता था कि वो दूर से भी देख ले। मैनी अ टाइम एंड ऑफ्टन बहुत बार कह सकते हैं, बहुत बार तुम लोगों ने क्या किया, क्लाइम्ड अप टू वॉल दीवालों पे चढ़ गए थे, किसको देखने के लिए, केवल देखने के लिए पॉम्पे को, वो स्ट्रीट ऑफ रोम से जा रहा है, केवल देखने के लिए इतना ज़्यादा उतावले रहते थे। टू टावर एंड विंडो टावर पे चढ़ जाते थे, विंडो से देखने लगते थे। टू अ चिमनी टॉप्स अपने गोद में अपने बच्चों को लेके रहते थे। सुबह अगर वो शाम को आना रहता था पॉम्पे को तो तुम लोग सुबह से ये सब तैयारी करने लगते थे। यू इन्फेंट्स इन योर आर्म मतलब कि अपने चिमनी टॉप्स को अपने गोद में लिए रहते थे। एंड देयर हैज़ सैट अ लिव लॉन्ग डे विथ पेरेंट एक्सपेक्टेशन और पूरे दिन तुम लोग ऐसे बिता देते थे एक एक्सपेक्टेशन से, एक उम्मीद से कि अभी पॉम्पे इस स्ट्रीट से गुजरेगा। टू सी ग्रेट पॉम्पे पास थ्रू द स्ट्रीट ऑफ रोम। वही एंड वेन यू सॉ हिज चैरियट विथ अपीयर जब तुम उसका गाड़ी चैरियट व्हील जो ऊपर भी आया था चैरियट व्हील, तो चैरियट मतलब एक गाड़ी था उस समय, वही बैलोल से होता था। तो जब तुम पॉम्पे का चैरियट मतलब उसका गाड़ी देखते थे आते समय दूर से देखते थे, हैव यू नॉट मेड अ यूनिवर्सल शाउट तो वो पूछता है, कौन पूछता है, मार्यूलस पूछता है, क्या तुम इतना आवाज़ नहीं करते थे। वही नहीं, पूरा रोम अगर मिल के आवाज़ करता था तो पूरा जो नदी थी वो हिल जाती थी। दैट टिम्बर्स ट्रम्बल्ड अंडरनीथ देयर बैंक तो जो बैंक होता था, शोर होता था रिवर का, वो तुम लोग के चिल्लाने की वजह से हिल जाता था। टू हियर द रिप्लिकेशन ऑफ द साउंड आवाज़ की वजह से। मेड इन हर कनकेव शोर के पास। टेम्बर एक रिवर है रोम में ही, ठीक। एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर तो हियर जो कनकेव शोर है उसका मीनिंग होता है हॉलो बैंक ऑफ रिवर। अंडरनीथ मतलब शेक, जो टिम्बर बैंक का जो रिवर मतलब जो टिम्बर रिवर है वो क्या होने का लगता था, वो होता रहता था, शेक होने लगता था। और यूनिवर्सल शाउट मतलब एकदम तुम चीयर्स करने लगते थे, ठीक। ये सब बताया है। फिर वो बाद में पूछते 3 क्वेश्चन। पहला, क्या तुम पहले उसके आने पे खुश नहीं होते थे। दूसरा, क्या तुम अपने काम से छुट्टी नहीं लेते थे। तीसरा, डू यू नाउ स्ट्रीट फ्लावर ऑन हिज वे क्या तुम जब जहाँ से वो आता था उतने वहाँ पे फूल नहीं बिछाते थे। ये सब कौन पूछ रहा है, मार्यूलस पूछ रहा है सिटीजन से, तो उन लोग के दिन में थोड़ा थोड़ा सा फीलिंग आ जाता है। एंड डू यू नाउ स्ट्रीट फ्लावर ही हो गया। दैट कम इन ट्रम्प ओवर पॉम्पीज ब्लड बी गॉन वो बोलता है, और जो सीजर आज तुम उसके लिए ये सब मना रहे हो मतलब फूल बिछा रहे हो, छुट्टी ले रहे हो, इतने खुश हो, उसके लिए जिसने पॉम्पे के ब्लड, पॉम्पीज ब्लड मतलब पॉम्पे का बच्चा, हिज सन,
पॉम्पेस सन। तो उसको जो डिफीट किया, आज तुम उसके लिए ये तीनों काम कर रहे हो। वो पूछता है, अब वो कहता बी गॉन, भगाता है वहाँ से, यहाँ से कहते हैं यहाँ से भाग जाओ। रन टू द हाउसेस कहता है, अब यहाँ पे ये 3 सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है रन टू योर हाउस, अपने घर जल्दी से भागो। फॉल ऑन योर नी, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। फिर क्या करो, प्रे टू गॉड टू इंटरमिट द प्लैग, मतलब अपने जो देर से तुम समझे हो अपना अरे गलती किया है ना, कि कभी पॉम्पे के साथ कभी सीज़र के साथ। तो बोलता है कि अपने घर जाओ, जल्दी से जाओ दौड़ के, अपने घुटनों पे बैठो और भगवान से अपने सिन का, अपने पाप का, प्लैग मतलब होता पनिशमेंट, अपने पनिशमेंट के लिए फॉरगिवनेस मांगो कि वो छोड़ दें। फिर लास्ट लाइन है, दैट नीड मच लाइट ऑन द internet, means for welcoming Caesar. Internet means welcoming Caesar, because you are made such a big mistake, you will get punishment from God. So go and fall at your knee, pray to God to forgive your sin for welcoming Caesar, for doing preparation for welcoming Caesar, राइट। फिर आता है फ्लैवियस। मार्जुलस इतना कुछ बोल दिया, अब फ्लैवियस उसमें थोड़ा सा मिर्ची तड़का लगाने आ गया। वो बोलता है गो गो गुड कंट्री मैन, अब उनको उस्काने लगा, गुड कंट्री मैन, अच्छे सिटीजन, गो गो गुड मतलब कि जल्दी जल्दी जाओ, अच्छे हो तुम लोग। एंड फॉर दिस फॉल्ट, और तुम्हारे इस पनिशमेंट के लिए, ये फॉल्ट के लिए, assemble all the poor men of the short, means सारी, assemble मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, गैदर। ऑल द पुअर मैन, सारे गरीब इंसान को, यहाँ पुअर मैन वो पुअर मैन नहीं है, ये कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल को इकट्ठा करो। डाउन दैम टू द timber bank and weep your tears into the channel till the lowest stream to kiss the most exalted shore of all, ठीक, टिल, और गैदर करके वहाँ पे रो, टिम्बर रिवर के पास रो, जब तक वहाँ का जो नदी है वो पूरा पानी से भर ना जाए, मतलब तुम लोग के आंसुओं से भर ना जाए, और एक छोटा सा लहर जिसको हम बोलते हैं शोर, एक छोटा सा शोर आके तुम लोग को किस ना करे, मतलब कि तुम्हारे बॉडीज़ को टच ना करे। सी एक्सटेंडेड सिटीज़न, अब वो सिटीज़न वहाँ से, मतलब कि ये सब सोचते हैं कि हाँ हमने गलत किया, ये सब नहीं करना चाहिए था, फिर वो क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। सी वेदर, अब वो मार्जुलस और फ्लैवियस अपने में बात करते हैं, वो बोलते हैं, अब वो एक दूसरे में बात करेंगे। फ्लैवियस मार्जुलस से कहता है, सी वेदर देयर बिस्टेड मेटल इज़ टू बी मूव्ड, मीन्स see that they are feeling guilty and not able to speak, मीन्स ये उनका फीचर है। फीचर क्या है सिटीजन्स का, वो बहुत ही अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, ठीक है, वो अपने आप को क्या करते हैं, गिल्टी फील करते हैं, और उन इतना गिल्टी फील करते हैं कि अपने मुंह से वो एक शब्द नहीं निकाल पाते हैं, ठीक। देखो यहाँ लिखा है टंग टाइड, टंग टाइड मीन्स उनके होठ एकदम चिपके हुए थे, मतलब कि इनका हालत ऐसा नहीं था कि वो एक भी वर्ड बोल सके। गो यू डाउन दैट वे टूवर्ड्स द कैपिटल, बोलता है तुम जाओ रोम के जहाँ पे सिटीजन गया है। दिस वे आई विल डिस्टॉर्ब, डिस्टॉर्ब मतलब डिस्ट्रॉय, ठीक, वे ऑफ कैपिटल हियर नॉट गिवन। This way I will dissolve, dissolve means destroy all the decoration and images of Caesar, ठीक। वो बोलता है फ्लैवियस मार्जुलस से, तुम जाओ जहाँ पे वो लोग गए हैं, मतलब रोम के पास, जहाँ पे वो सारे लोग गए हैं टिम्बर रिवर के पास अपने आंसुओं से शोर को भरने, वहाँ तुम जाओ, और मैं पूरे कैपिटल में, पूरे रोम में जितने भी डेकोरेशन है सीज़र के लिए, उनका इमेज, उसका इमेज, वो सब हटाने जा रहे हैं। डिशॉर मीन्स गोइंग टू रिमूव ऑल द डेकोरेशन, राइट। नाउ फिर क्या होगा, फिर वो बोलता है, मार्जुलस को एक सजेशन देता है कि मार्जुलस, अगर तुम अपने वे में, इफ़ यू डू फाइंड एनी डेकोरेट विथ सेरेमनी, और तुम भी डेकोरेशन हटा देना अगर तुम्हारे वे में कोई भी डेकोरेशन सीज़र के लिए दिखा, ठीक। अब यहाँ पे मार्जुलस थोड़ा सा ऑब्जेक्शन दिखाएगा, क्या ऑब्जेक्शन दिखाएगा,
मे वी डू सो, बोलते क्या हमें ये करना चाहिए। यू नो इट इज़ अ फीस्ट ऑफ लुप्रिकल, क्योंकि ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुम जानते हो कि फीस्ट ऑफ लुप्रिकल है आज, मीन्स 15 फरवरी को फीस्ट ऑफ लुप्रिकल मनाते हैं और ये रोम के पीपल्स को बहुत ज़्यादा बिलीव है। ये एक्ट 1 सीन 2 में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बता सकते हैं कि फीस्ट ऑफ लुप्रिकल में ऐसा माना जाता है कि एक होली पोसेशन होता है, जैसे बारात जाता है तो दूल्हा के पीछे सब कुछ रहते हैं बाराती, वैसे ही इसमें दूल्हा नहीं रहता है, सब पोसेशन लिए रहते हैं, राइट। उसमें पोसेशन जो लिया रहता है उसको स्पेक्टर्स कहते हैं, एक्सपेक्टेटर्स, हाँ स्पेक्टेटर्स। अगर कोई लेडी है जो अपना बच्चा नहीं दे पाती है, मीन्स अनफर्टिलिटी, शी इज़ हैविंग सम पर्सनल प्रॉब्लम और मे बी बॉयज़, तो अगर कोई जो प्रोसेशन लिया हुआ है अगर उस लेडी को टच कर दे तो उसका जो फर्टिलिटी होता है वो क्योर हो जाता है, वो अपने बच्चे को मतलब अपना बच्चा दे सकती है, पैदा कर सकती है। तो ये फीस्ट ऑफ लुप्रिकल है। तो बोलती है कि मारुलस बोलता है फ्लेवियस से क्या हमें यह करना चाहिए, क्योंकि फीस्ट ऑफ लुप्रिकल की वजह से भी तो डेकोरेशन हुआ है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह सीज़र की ही वजह से हुआ। तो फ्लेवियस बोलता है इट्स नो मैटर, मीन्स इट डजेंट मैटर फॉर मी, लेट नो इमेज, let there should be no decoration and images, be hanged with Caesar trophies, means be hanged with Caesar trophies, remove all the trophies and whatever. I all about and drive away the vulgar from the street, and I all am going to do that. यहाँ पे I all about means I am going to do that. And decoration of Caesar, vulgar means decoration of Caesar, I am going to drive away all the decoration of Caesars from the Rome. So do you too, मतलब तुम भी ये करो, where you perceive them thick, जहाँ पे भी तुम्हें वो दिखे तुम्हें क्या करना है, where you see them crowded in place, कहीं पे भी तुम अगर भीड़ जमा होते हुए देखो crowded place तो वहाँ से इंसान को भगा दो। और जो भी हमने बताया है कि जाके घर पे नी के बल अपने गॉड से फॉरगिवनेस मांगो, फिर सारे सिटीज़न को इकट्ठा करके टिम्बर के पास जाके रो, पूरे नदी को भरो अपने आंसुओं से, ऐसा ऐसा उन सबको बता देना। किसको? वेयर यू परसीव दैम थिक, वेयर यू सी द क्राउडेड प्लेस, दीज गोइंग फीदर्स प्लग्ड फ्रॉम द सीजर्स विंग। और अगर हमने ऐसा किया जैसे उड़ती हुई चिड़िया को आप देखे होगे, ईगल देखो, ईगल में से अगर हम एक एक विंग्स निकाल दें तो क्या होगा, क्या वो उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। वैसे ही जब हम डेकोरेशन और इमेजेस स्ट्रीट में से हटाएंगे तो सीज़र का हमें ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि सीज़र का एक एक पंख हम तोड़ रहे हैं, जितना ऊंचा वो उड़ रहा है वो आके नीचे गिर जाए। अंडरस्टूड? प्लग्ड मीन्स बर्ड विच कैनॉट फ्लाई ओवर द स्काई। विंग्स जब हट जाएगा तो स्काई के ऊपर कैसे होएगी, नहीं आ पाएगी। ठीक। विल मेक हिम फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच, और एक नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे इंसान ऑर्डिनरी पिच मीन्स किंग के पोजीशन से हट के जैसे कॉमन पीपल रहते हैं वैसे उसे रहना पड़ेगा। हु एल्स कुड श्योर अबाउट द व्यू ऑफ मैन वंस ही बिकम किंग। अब वो बात करने लगा, अगर ये दो लाइन में उन्होंने पॉसिबिलिटी बताई है, अगर सीज़र किंग बन गया एंड कीप अप ऑल द सर्वाइल फियरफुलनेस मीन्स अगर सीज़र किंग बन गया तो हमें अपना पूरा लाइफ एक स्लेव बन के रहना पड़ेगा और हमेशा डर डर के जीना पड़ेगा। और यहाँ पे एक्सक्यूट मीन्स सब चलेगा, या एक्ट 1 सीन 1 एंड पे आया। ओके एंड so I hope this video is very useful for you. If you think that this video is useful, then you can comment me, and if you are having any doubt you can ask me. So with this we are ending our video. Thank you so much. Radhe Radhe.